Good morning, friends. Today we will study this chapter. The title of the chapter is I Passed the Delhi Test by Sunil Manohar Gavaskar. S.M. Gavaskar. Manohar Gavaskar. I passed the Delhi Test. So we all know who Mr. Gavaskar is. Sunil Gavaskar, Sunil Manohar Gavaskar, born on 10th July 1949, the legendary Indian opening batsman. He is a towering personality in the world of cricket. Towering personality, he is legendary Indian opening batsman. He is also a renowned TV commentator and prolific writer. In addition to numerous write-ups in leading journals, he has authored 3 best-selling books. उन्होंने ये जो काम किया, कमेंटेटर का काम किया, प्रोलिफिक राइटर थे, इसके अलावा वो 3 फेमस किताबें लिखी उन्होंने। पहला था सनी डेज इन 1976, आइडॉल्स 1983 एंड रन्स एंड रिहम्स 1981. So these 3 were books written by Sunil Manohar Gavaskar. Born and brought up in Bombay, where he attended St. Xavier's High School and college. In these lines we are getting information about his education. He born and brought up in Bombay, these days we call Mumbai, where he attended St. Xavier's High School and college. The Little Master. His nickname was Little Master. उपनाम उनका कहिए लिटिल मास्टर के रूप में वो फेमस थे. He was famous for Little Master. Is the first batsman in Test cricket to have surpassed Don Bradman's world record of 29th Test centuries. What a record that person had made! He had broken the record, surpassed the record created by Don Bradman. He had made 29 Test centuries. He also made that. By the time he retired from the Test cricket, he had made 34 Test centuries in 125 Test matches, setting a new world record. Though his record has been broken by another legendary Indian batsman, सचिन तेंदुलकर. उनका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा किसने? तो एक भारतवासी ने ही, मिस्टर सचिन तेंदुलकर. But the fact remains that most of Gavaskar's hundreds were scored as an opener, facing all the fury of the new ball, a feat not achieved by anyone in Test cricket till date. गावस्कर में बड़ी बात यह थी कि उनका जो भी सेंचुरी बना वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर. ओपनर जो बैट्समैन होता है वो बॉलर का जो मुख्य धार है, फ्यूरी ऑफ द न्यू बॉल, उसको झेलता है. श्योरली एज एन ओपनर हिज रिकॉर्ड वाज अमेजिंग. ही हैज परफॉर्म वेरी ग्रेट वर्क, and so that feat was not easily achieved by anyone in Test cricket till date. आज तक वह हाइट किसी को नहीं मिला. In the present extract taken from Runs and Runes, Gavaskar recounts his experiences. So this chapter which we are going to start is taken from this book Runs and Runes by Gavaskar. Recounts in this book he has recounted his experiences when he was going through a lean patch of his career, and how people and he himself had lost faith in his ability. The extract is a wonderful example of how failure can be the pillars of success, provided one has the determination to do so. अगर एक व्यक्ति कुछ करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हो, समर्पित हो, तो वह व्यक्ति अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है. सक्सेस कैन बी गॉट by the achievers who really
deserve it, and the deserving qualities are called faith, constant practice, determination to do that. तो ये गावस्कर के चैप्टर इसीलिए मशहूर हुआ कि ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणादायी होगा कि जब गावस्कर का फॉर्म खराब था। क्रिकेट में जनरली क्या होता है कि जो फॉर्म अच्छा है, वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती वीर भोग्या है, जब तक आप फॉर्म में हो तो सभी पूजते हैं, बट एज सुन एज योर फॉर्म गोज डाउन पीपल स्टार्ट नेग्लेक्टिंग यू। दैट टाइम योर डिटर्मिनेशन, योर स्ट्रेंथ इज टेस्टेड. You have to prove that you are a man of hour, and if you not kneel down, surely you will get success. So ये गावस्कर के लाइफ में भी ऐसा हुआ। वो क्रिकेट में बहुत महान थे, लेकिन एक समय आया जब उनका फॉर्म खराब था। People were criticizing him, they were raising questions upon him, although there were many people who were in his support, who had faith. And so at last Gavaskar became successful in creating world record by hitting 29th century. तो ये 29वां शतक बनाने के पहले की पृष्ठभूमि पर चैप्टर है आपको। तो इस चैप्टर में क्या हम लोग देखेंगे कि ये गावस्कर ने 29वां टेस्ट शतक जो बनाया, उसी टेस्ट मैच की बात इसमें है, ठीक है ना। सो दिस चैप्टर इज अबाउट द मैच in which he has scored his 29th century, टेस्ट सेंचुरी। 29वां शतक उन्होंने बनाया सुनील मनोहर गावस्कर ने दिल्ली टेस्ट में, और इस प्रकार से उन्होंने अपना खोया हुआ फॉर्म वापस किया। तो ये फॉर्म नहीं था उस समय और लोग सवाल उठा रहे थे, तब उन्होंने ऐसा खेला और टेस्ट सेंचुरी बना करके 29वां शतक बना करके डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो ये बहुत बड़ी बात रही, ये उपलब्धि थी उनकी। सो this chapter is set for you in standard 11th Bihar board syllabus. So work in small groups and discuss the following questions. Do you play cricket? How much do you like it? This question is very easy for you. Do you play cricket? Yes, you can write that. Yes, I play cricket. I like it very much. All people in our country, they like cricket. So nobody, I think, can write that yes, that he does not like cricket. No, I think that everyone will like this play. However, where and how did the game of cricket originate? The game of cricket is originated in England. इंग्लैंड में ही ये शुरू हुआ। इंग्लैंड के लोग ही भारत में लाए, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन हुआ, उपनिवेश जहाँ जहाँ उनका था, वहाँ के देश इस खेल में आगे बढ़े। सो द गेम ऑफ क्रिकेट वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एंड इट इज प्लेड जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्पेशली देयर वेयर इंग्लिश पीपल हैड डोमिनेटेड। हाउ मेनी कंट्रीज प्ले टेस्ट क्रिकेट? These days only 10 teams are playing cricket. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतना ही। ओके, 10 हुआ ना। इंडिया, ये 5 यहाँ पर हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान 5, न्यूजीलैंड 6, इंग्लैंड 7, ऑस्ट्रेलिया 8, वेस्ट इंडीज 9, ये 10वां कौन बचा? ये साउथ अफ्रीका है। ओके, तो साउथ अफ्रीका वाज 10th टीम। ये आयरलैंड को भी शामिल किया गया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, उनका टेस्ट दर्जा खतरे में है। उसके पहले भी एक और टीम थी जिम्बाब्वे की, वो टेस्ट खेला करती थी, लेकिन उनकी मान्यता भी रद्द हो गई है, पॉलिटिकल रीजन्स हैं उनके पीछे। तो ये आपको हुआ। तो यू कैन से दैट दिस डेज ओनली 10 टीम्स आर प्लेइंग क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए टेस्ट मैच? टेस्ट मैच 5 दिन का होता है और उसमें हार जीत का फैसला नहीं भी हो सकता है, देयर में बी ड्रॉ, बट इन ए लिमिटेड ओवर मैच
result surely comes out. It is fixed over match, 50 over, 60 over. This is 20 over also. In future I think that new version of this game will come, और हो सकता है कि वो 10 ओवर का ही मैच हो। तो आने वाले दिनों में ऐसा संभव है। बहुत दिन पहले nobody could think that there would be a 20 over match, and these days we are playing. So which form of cricket do you like more? Give reasons. All the forms of cricket are good. I like all the forms because all the forms have got their own beauty. So all are good. All the forms of cricket are good. I like them. I like all. After that we will start the chapter. My dear friends, as we have started the class for standard 11th and 12th Bihar board, I had taught you so many chapters, and I will finish all the chapters. After that I will do question answer also. I will give you important question answer also for examinations. So I think that you will subscribe, share and like. आप जहाँ जिस कोचिंग सेंटर में जाते हो वहाँ कोई आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, आप उनको भी शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का नंबर ज़्यादा होना किसी वीडियो बनाने वाले के लिए इंस्पायरिंग होता है। तो आई एम डूइंग दिस फॉर यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। लाइन नंबर 1, आई पास द दिल्ली टेस्ट। दिल्ली टेस्ट को मैंने पास किया, मतलब दिल्ली टेस्ट खेलने के पहले गावस्कर का फॉर्म बहुत ख़राब था। His form was the worst. Nobody was hoping from him good. Still then he was given a chance. So we had another 2 days to practice in Delhi before the second test began. In Delhi we had got 2 days more to practice before the second test began. It was the second test of the series. On the eve of the test, my second book, Idols, was released by Kapil Dev. आइडल्स नाम की जो किताब थी गावस्कर की, वो कपिल देव ने उसको रिलीज़ किया। इंडियन स्कीपर थे, इंडियन कैप्टन थे उस समय वो, विथ क्लाइव लाइड एज चीफ गेस्ट। अपोजिशन टीम के जो कैप्टन थे वो क्लाइव लाइड थे, श्रीमान क्लाइव लाइड। तो क्लाइव लाइड एज चीफ गेस्ट, माइकल होल्डिंग एंड जेफ डुजो ऑनर्ड द फंक्शंस बाय देयर प्रेजेंस। अदर डिग्निटरीज who were present in that ceremony where Michael Holding and Jeff Dujon honored the functions by their presence. There were plenty of pressmen around and the atmosphere was very cordial. ये गावस्कर की लिखी हुई किताब आइडल्स का उद्घाटन हुआ, सेरेमनी हुआ। तो इस किताब का जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ, समर्पित किया इन्होंने समाज को, तो उसको कपिल देव ने रिलीज़ किया। और क्लाइव लाइड जो थे वो चीफ गेस्ट थे, और माइकल होल्डिंग और जेफ डुजों ये भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद प्रेस वाले तो थे ही। विद इन आवर्स द बैटल वाज टू बी रिज्यूम्ड। बैटल का मतलब यहाँ पर हुआ मैच जो था वो विद इन आवर ही, अब कुछ ही घंटों में, 1 घंटा के भीतर बैटल शुरू होने वाला था, मैच स्टार्ट होने वाला था। सो वी वेंट बैक टू द होटल टू रेस्ट। There was little of rest, however, since वहाँ रेस्ट करने का मौका होटल में बहुत कम मिला मुझे। कारण था उसका, since my wife's friend from college days, मेरी वाइफ की एक दोस्त थी जो कॉलेज में पढ़ती थी साथ है, वो आई थी, विजया उनका नाम था, विजया, dropped in to see her. She came in to see her. वो मेरी वाइफ से मिलने आई। As they were meeting each other after 7 or 8 years. They were meeting each other after 7 or 8 years. They had a lot of news and gossip. उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, news and gossip to exchange. And then during the evening, Vijaya's sisters and brother dropped in with their spouses. और शाम में विजया की बहन और उसके भाई भी आ गए अपने बच्चों के साथ। With the result that there was almost an impromptu मतलब unplanned impromptu party in our little room. This was the first time impromptu, unplanned. This was the first time I missed the privilege
I missed the privilege to being the captain because a skipper gets a suite and so is able to look after his guests better. जो कैप्टन होते हैं टीम के उनको सूट मिलता है रहने के लिए, लेकिन गावस्कर उस टीम में नहीं थे, उस समय कैप्टन नहीं थे टीम के, कपिल देव थे. मोस्ट होटल्स वेयर वी स्टेड and the local cricket associations were kind enough to give me a room to myself. तो लोकल क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे एक रूम दिया स्पेशली, क्योंकि क्रिकेट का जो कैप्टन होता है बोर्ड का या टीम का, उसको जो फैसिलिटी मिलती है वो अन्य लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन मुझे क्रिकेट एसोसिएशंस जो थे वहाँ के लोकल, उन लोगों ने एक अच्छा रूम दिया. दो इन अ होम सीरीज ओनली द स्कीपर इज इंटाइटल्ड टू वन एंड इफ ए वाइस कैप्टन इज नेम्ड देन ही ऑल्सो गेट्स ए सिंगल रूम. वाइस कैप्टन को मिलता है, नहीं तो कैप्टन को मिलता है रूम. विजया एंड हर सिस्टर लेफ्ट अराउंड मिडनाइट. वो मिडनाइट में वहाँ से गए. विथ विजया वार्निंग मी, जाते समय विजया बोल के गई, दैट वार्निंग दी मुझे, दैट आई हैड बेटर टू डू वेल द नेक्स्ट डे एज दैट वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे एट ए टेस्ट मैच अर्लियर इन द इवनिंग. वो जाते समय बोली कि हैड बेटर डू वेल द नेक्स्ट डे, मैच जब शुरू होगा उस दिन अच्छा कीजिएगा, एज दैट वॉज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डे एट ए टेस्ट मैच. ये पहला दिन था उसका टेस्ट मैच देखने का. अर्लियर इन द इवनिंग एज वी हैड रिटर्न फ्रॉम द आइडल्स रिलीज फंक्शन. आइडल रिलीज फंक्शन से हम लोग आए. आई वॉज accosted by some young girls who had asked me to score the fastest century of my career the next day. There were some girls, they charged me, they requested me, they inspired me for making a fastest century. I remember laughing. That time I laughed at that because I would have happy to score even half. अगर 50 भी बना देता मैं तो मैं खुश होता. और सेंचुरी की बात और थी, because I was out of form. That match in the game so low was my confidence at that stage. At that stage the confidence level of the player, Mr. Gavaskar, was very low that time. It was certainly not helped by the derisive comments passed earlier in the day by part of the crowd. भीड़ ने कुछ अटपटा कमेंट किया था मेरे ऊपर. Had come to watch as प्रैक्टिस मैच देखने वो लोग आए थे, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, जो दर्शक आए थे देखने उन्होंने कुछ उटपटांग कमेंट किया मेरे ऊपर. आई इवन पिक्ड अप ए पर्सन फ्रॉम द क्राउड हु हैड सेड समथिंग नास्टी एंड हैड एन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स विथ हिम. कोई एक आदमी जो उटपटांग कुछ बात किया था, मैंने उसको बुलाया और उसको कुछ तुतु में किया. आई लेफ्ट द नेट्स अर्ली एंड सैट इन द ड्रेसिंग रूम. मैं अपना रूम छोड़ा और ड्रेसिंग रूम में जाकर के बैठ गया. मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया उस दिन शाम में ही. Having informed Kapil that rather than pick up a fight with the crowd, कपिल देव को मैंने बताया कि उससे ज़्यादा बात करने का मतलब था कि क्राउड से झगड़ा हो जाता. तो ये हर खिलाड़ी की लाइफ में ऐसा होता है कि कभी कभी फॉर्म ख़राब होता है तो लोग उटपटांग कमेंट करते हैं. आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं, वो आपके दर्शक हैं. कपिल को मैंने इन्फॉर्म किया, इट वुड बी बेटर फॉर मी टू बी इनसाइड. मैंने बताया कि इट वुड बी बेटर फॉर मी टू बी इनसाइड. अपेरेंटली कपिल डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट आई हैड लेफ्ट द नेट्स. कपिल देव को बात ठीक नहीं लगा कि मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, नेट से मैं बाहर निकल आ गया हूँ. दो एट दैट मोमेंट ही डिड नॉट से एनीथिंग. ऑल्दो ही डिडंट से एनीथिंग, माई इंटेंशन वॉज क्वाइट सिंपली टू ट्राई एंड कीप कूल एंड बी रिलैक्स्ड दैन गेट अपसेट बाय द टॉन्ट्स ऑफ द क्राउड. टॉन्ट मतलब कमेंट, ऐसा कमेंट जाता हो जो हंट करता हो. ऐसे कमेंट से मैंने अपना को कंट्रोल करने का प्रयास किया. क्राउड्स ऑल ओवर इंडिया आर बेसिकली द सेम. पूरे भारत में जो क्राउड है, भीड़ है, दर्शक होते हैं, ऐसे ही होते हैं. एंड आर इन पर्टिकुलरली एडेप्ट एट किकिंग ए मैन व्हेन ही इज डाउन. और जब मनुष्य का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है तो ऐसे लोग प्रायः उन पर बैड कमेंट करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस का लेवल और लो जाता है. होना ये चाहिए था कि जब कॉन्फिडेंस किसी का लो हो तो हमारा आदमी होने के नाते फ़र्ज ये है कि उसको ढाढ़स बढ़ाएं, उसको हिम्मत बढ़ाएं, उसकी आलोचना नहीं करें. बट व्हेन वी आर ए फेलियर पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग.
लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो इसी के लायक हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये तो पैरवी के बल पर आ गए हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये ऐसा कमेंट जो लोग करते हैं वो कोई हेल्प नहीं करते, दे डोंट हेल्प, ओनली इंस्टीड दे पुट अस डाउन। वो हमें डाउन ही करते हैं, वो लोग हमें हेल्प नहीं करते। सो दिस इज द नेचर ऑफ द क्राउड। व्हेन वी आर गोइंग टू बी अ हीरो, बी अ सुपरस्टार, बी अ गुड प्लेयर, बी अ हाईलाइटेड मैन, we must keep it in mind that sometimes people behave like that. We shouldn't hope from people that they will always speak in our favor. ये might is right, जो फॉर्म में होता है उसी की पूजा होती है। Those who are out of form, they are never worshipped. Okay? ये डूबते हुए सूरज की पूजा भारत में होती है, बट कहावत ये है कि डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूजता है। हालांकि भारत में होता है, छठ अवसर पर तो डूबते हुए सूरज की लोग पूजा करते हैं, बट दिस वाज इन द केस ऑफ मिस्टर गावस्कर। ही वाज आउट ऑफ फॉर्म एंड दैट टाइम पीपल वे आर क्रिटिसाइजिंग हिम। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप अर्लियर देन यूजुअल and saw that a few messages had been shoved under the door along with the newspapers. न्यूज़पेपर भी रखा था दरवाजे पर, उसके साथ साथ कुछ आइडिया भी लोगों के थे। ए कपल ऑफ मैसेजेज मींट ए लॉट एंड सो व्हेन आई वेंट टू द ग्राउंड, वो जो वेल विशेज थे उनके साथ मैं ग्राउंड में गया। आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड एंड कम्प्लीटली एट ईज। दैट डे आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड आफ्टर our customary warm-up exercises, a ritual that is absolutely necessary in today's age of almost non-stop international cricket. We went back to our dressing room. जो प्रैक्टिस हुआ वो किया और उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग रूम में फिर चले गए। द मैनेजर, रिचुअली होता है, रिचुअल्स प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं। द मैनेजर वाज दिलीप सरदेसाई, ए जोवियल पर्सन, वो बहुत ही खुश मिजाज लोग थे, दिलीप सरदेसाई। एंड ही वॉज जोकिंग विथ अस व्हेन कपिल वॉकड इन विथ ए ह्यूज ग्रीन। कपिल मुस्कुराते हुए आए, ह्यूज ग्रीन, लंबी मुस्कान थी उनकी। सेइंग दैट ही हैड वोन द टॉस एट लास्ट, वो बोले कि एट लास्ट वो टॉस जीत गया है आज, एंड दैट वी वुड बी बैटिंग विथ, अब उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। With those words, the familiar tightening of the stomach muscles took place and the feeling that another test match was to begin came on. अब दूसरा मैच स्टार्ट होने ही वाला था। ये टेस्ट मैच उस दिन का शुरू होने ही जा रहा था, होने ही वाला था। टेस्ट कैप्टन जीत गया था हमारा टॉस, तो बैटिंग शुरू होगी, और बैटिंग शुरू होगी तो एज मिस्टर गावस्कर वाज द ओपनर, सो ही हैड टू बैट फास्ट। Irrespective of how many years of or how many tests one has played, the nervous tension never seems to vanish. कितना भी पुराना खिलाड़ी हो, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, लेकिन मैच शुरू हो उस वक्त उसको टेंशन होता ही होता है। एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग, किसी को टेंशन होना अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ अ गुड थिंग टू बी इन टेंशन, बिकॉज व्हेन वी आर सीरियस वी फील टेंशन and then we are able to perform better. डर के आगे जीत है, जो डर नहीं तो आदमी जीतता भी नहीं है, because it shows that one cares about one's performance and the tension makes one that much keener. टेंशन व्यक्ति को और सावधान करता है। Which book of Gavaskar was released on the eve of the test? Who released the book? ये Mr. Kapil Dev has released the book. The name of the book was Idols. And okay, who released the book? Mr. Kapil Dev, the skipper of the team. Who was the chief guest? Clive Lloyd was the chief guest. Who were the other important guests? Jeff Dujon and Michael. You will see the answer of this question in line number 1. So Idols was the name of the book. Kapil Dev was the skipper. He has released the book. Clive Lloyd was the chief guest. Michael Holding and Jeff Dujon were other guests at that moment. Okay, so this is the answer of question number 2.
Then 3. Gavaskar could not take good rest as he had intended. Why? Because Vijaya, his wife's friend, had come in the house with his brother and sister, with his spouses, and the house had become a little party. So Gavaskar was not able to take rest. Within hours, the battle was to be resumed. So we went back to the hotel to rest. What does the battle refer to? The battle means test match. The match which was going to start, that was the battle. बैटल में का मीनिंग होता है युद्ध, पर यहाँ पर युद्ध नहीं है, वो खेल है. तो क्रिकेट का मैच जो शुरू होने वाला था उसी की बात हो रही है. बैटल मीन्स दैट टेस्ट मैच विच वाज गोइंग टू बी स्टार्टेड. Why did Gavaskar leave the nets early during practice? Because one person, some people from the crowd were commenting bad. So one person was in a mood to fight with Gavaskar. So Gavaskar decided to leave the net, avoid the unwanted process with the crowd. What was Kapil's reaction? Kapil was not happy with that, but he did not say much. What did the young girls asked Gavaskar? Young girls asked Gavaskar to hit the fastest century of his life. Why did he laugh at their request? He laughed at their request because he was thinking only if 50 is possible, that will also be good, because his standard level of confidence was so low. What does it suggest about the level of his confidence? Yes, it shows that his confidence level was very low. How far do you think? Is it proper to make derisive comments when a good player is struggling to regain his form? No, it is not good to comment bad on a person who is struggling to regain his form. किसी उठते हुए आदमी को उठाना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको कमेंट करना चाहिए. Does it help the player anyway? No, such bad comments never help a person. It only creates tension and irritation. A couple of messages meant a lot. थोड़ी बहुत शुभकामनाएं वाले संदेश थे, लोगों के मैसेज थे, उनका मतलब बहुत कुछ था. कुछ मेरे सपोर्टर भी थे जो चाहते थे कि मैं अच्छा खेलूं. So Gavaskar was happy with those messages. He felt relaxed as some messages were in his favor. How do you feel when your friends or relatives offer their best wishes when you are getting ready for exams? We feel excited. We feel blessed when our near and dear ones, when our relatives inspire us to perform better, to do better. We feel happy that time. कोई आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है, तो हमें खुशी महसूस होती है. We feel positive energy gained. What are your feelings on the eve of an important examination? We are in tension before any important examination. Do you feel any sort of anxiety even after a good preparation? If so, why? Yes. जब तक पूरा प्रिपरेशन हो नहीं जाए, जब तक वो लिखा नहीं जाए एग्ज़ाम में, तब तक व्यक्ति को टेंशन होता ही होता है. क्योंकि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, और आप कितना कॉपी में अपने आंसर शीट में लिख पाए, ये दूसरी बात होती है. सारा कुछ जितना आपको आता है, इफ़ यू आर एबल टू राइट इन योर आंसर शीट, देन यू आर ए गुड स्टूडेंट, देन यू विल गेट गुड मार्क्स. सो दिस इज क्वाइट नेचुरल दैट ऑल पीपल फील टेंशन when appearing in an important examination. Okay, so your answers may be your own. और ये एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का एक मात्र तरीका है, व्हाट एवर यू नो इट परफेक्टली. आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर का हर वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, हर लाइन का मीनिंग आना चाहिए. बहुत कुछ दुनिया में जानना नहीं है व्यक्ति को, लेकिन जो भी आपके सामने है जानना, उसको अच्छी तरह से जानिए. कोई चैप्टर है तो उसकी हर बात को, हर छोटी बड़ी बात को समझना. दैट इज़ कॉल्ड वे ऑफ मेथड ऑफ माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग का मतलब है छोटी सी छोटी बात चैप्टर का अगर मास्टरी के साथ आप लिख पाओ, हैंड राइटिंग आपका अच्छा हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो और लिखावट शुद्ध हो, हैंड राइटिंग बढ़िया हो और करेक्शन हो, आप में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और कंसेप्ट एक होना चाहिए. कंसेप्ट में कोई नहीं कह सकता है कि एक कंसेप्ट गलत है और एक कंसेप्ट सही है.
एक तरह का कंसेप्ट होना चाहिए आपका। योर कंसेप्ट मे बी डिफरेंट दैन दैट ऑफ माइंड। मेरे कंसेप्ट से हो सकता है कि आपका कंसेप्ट अलग हो, लेकिन वो कोई बात नहीं है। बात यह है कि आपका ग्रामेटिकल करेक्शन हो, सेलेक्शन ऑफ राइट वर्ड्स हो, वर्ड स्टॉक होना चाहिए उसके लिए, और गुड हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन गुड हैंड राइटिंग। ये टेक्निक है 100% मार्क्स लाने का। लोगों को नंबर कम आते हैं, उसका कारण यही है कि वो हैंड राइटिंग गड़बड़ हो, वर्ड पावर की कमी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हों, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हों, इसी से नंबर कम आता है। अगर इन चीज़ों को आप दुरुस्त करते हैं, श्योरली यू विल गेट 100% मार्क्स। तो कुछ लोग पूछते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि सर ये हाउ टू गेट 100% मार्क्स। तो बस कुछ नहीं है, जो भी आपके सामने है उसको सही सही जानो, ओवरलुक नहीं करो किसी चीज़ को, नेवर ओवरलुक एनीथिंग। आप हड़बड़ी में किसी चीज़ को पास ऑन मत कीजिए। कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि पूरी किताब आप एक ही दिन में पढ़िए, आप एक ही लाइन पढ़िए, एक ही पैराग्राफ पढ़िए, बट बी मास्टर ऑफ दैट। मास्टर ऑफ दैट का मतलब हुआ कि आप उसको, यू हैव टू नो ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग, राइट स्पेलिंग, राइट ग्रामेटिकल यूज, and neat and clean handwriting, and one type of thought. No one is in this world going to stop you from gaining 100% marks. So my dear friend, ये इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर व्यूइंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे।